قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیک برتاؤ سے ٹال دیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی یک وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست۔ معراج کا حیرت ناک واقعہ پیش آیا تو جو لوگ عقل کے کورے تھے، دل ان کے بے نور تھے اور بصیرت سے وہ یکسر محروم تھے، وہ اللہ کی حکمت کو نہ سمجھ سکے، وہ شیطان کے پھندے میں آ کر دین سے پھر گئے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا، البتہ مشرکوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور دماغ آسمان پر جا پہنچے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا، طے کر لیا کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ عرب میں 3 بہت مشہور بازار تھے، بازار عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز۔ حاجی ہر سال مکے جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے۔ منا اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے۔ ان آیتوں میں شرک کے انجام بد کے ڈراوے ہوتے، ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمان لانے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی قریش کی بدسلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں، رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا؟ جانثاروں کی تعداد بڑھے، مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے غنڈے پیچھے ہو لیتے، اور کسی کو دعوت دیتے تو یہ فوراً تردید کرتے، ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہتے اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک طفیل دوسی تھا۔ یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بہرور تھے۔ حج کی غرض سے مکے آئے تو قریش نے کان بھر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا، طواف کرنے چلے تو کانوں میں روئی ٹھونس لی، مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کان میں پڑ جائے۔ وہ کعبے کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ طواف کے دوران پاس سے گزر ہوا تو کانوں میں قرآن کی کچھ نہ کچھ بھنک پڑ ہی گئی۔ غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگیں۔ دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب اور ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کی کیا معنی؟ اچھی ہوئی تو بہتر ہیں ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا، ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، انہوں نے بڑی جوانمردی دکھائی، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، کوئی بات کہوں تو اس کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، ابھی جاتا ہوں اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوٹ کر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، سب کو ان کی عقل و فہم پر اطمینان تھا، فوراً وہ تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں پوری قوم مسلمان ہو گئی، سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا، آپ نے انہیں قرآن کی چند آیتیں سنائیں، سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہیں تھی، فوراً وہ ایمان لے آئے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور کچھ قریشی مل گئے، دیکھتے ہی غرائے، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے تو بھیجا تھا کہ حقیقت کو پتہ چلاؤ، صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ حال، تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے بے پیندے کے بدھنے، بیٹھے نہیں کہ اس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، سب سنی انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا، وہ بے تابانہ بڑے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے پھر اس سے مالا مال ہوئے، ان میں سامت کے بیٹے سوید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ مدینے کے بہت معزز لوگوں میں تھے، شاعری میں ماہر تھے، بہادری میں طاق تھے، خاندانی اعتبار سے اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے۔ یہ حج کی غرض سے مکے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھیں اور خدا پرستی کی دعوت دی۔
सुवैद ने कहा, शायद जो मेरे पास है वही आपके पास भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या है आपके पास? सुवैद ने कहा, हकीम लुकमान की हिकमतें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या हैं वो हिकमतें? कुछ हमें भी सुनाइए। सुवैद को जितनी हिकमतें मालूम थी सब सुना दी। आप अलैहिस्सलाम गौर से सुनते रहे, फिर फरमाया, ये तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मेरे पास हैं वो इनसे भी बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। मेरे पास कुरान है, खुदा की आखिरी किताब, वो सरापा नूर और हिदायत है। आप अलैहिस्सलाम ने उनको कुरान सुनाया और नए दीन की दावत दी। सुवैद बहुत मुतासिर हुए, बोले, ये तो बहुत उम्दा है। फिर सुवैद मदीना लौट आए। जो कुछ सुना था जहन में महफूज था, उसे बार बार सोचते रहे। बाद में कत्ल हुए तो मुसलमान थे। हुआ ये कि मदीने में यहूद भी आबाद थे। ये लगाने बुझाने और चालें चलने में माहिर थे। इनकी चालों से औस और खजरज बाहम एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। उनमें बहुत जोरों की खाना जंगी हुई। सुवैद रजी अल्लाह अन्हु उसी में काम आ गए। मदीने से आकर जो लोग इस्लाम लाए उनमें अयास रजी अल्लाह अन्हु भी थे। ये माज के बेटे थे, अभी बहुत कम सिन थे। औस और खजरज में जंग तो चल रही थी। हर एक की कोशिश थी अरब के जितने कबीले मिल सकें उनको अपना हलीफ बना लें, इस तरह फरीक मुखालिफ पर गालिब आ जाए। औस के कुछ लोग आए कि कुरैश को अपना हलीफ बनाएं। उन्हीं में अयास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो उन लोगों के पास आए, उन्हें इस्लाम की दावत दी, कुरान की कुछ आयतें सुनाई। आयतें सुनकर अयास ने कहा, मेरी कौम खुदा की कसम, जिस काम के लिए आप आए हैं ये उससे भी बेहतर है। लेकिन उनको तो जंग की धुन थी और रात और दिन उसी की फिक्र थी। काफिले का सरदार अबुल हैस था। उसने जमीन से कंकरियां उठाई और उनके मुंह पर मारी और फिर बेपरवाही से बोला, चुप रहे, इस काम के लिए हम थोड़ी आए हैं। लेकिन अयास रज़ी अल्लाह अन्हु उसी वक्त इस्लाम ले आए। फिर कुछ ही दिन गुजरे कि औस और खजरज में जंग के शोले भड़क उठे। बहुत से कबीलों में आप अलैहिस्सलाम खुद गए, उन्हें इस्लाम लाने की दावत दी, बड़ी दिलसोजी से हक का साथ देने और दीन की मदद करने की दरखास्त की। लेकिन कानों पर जूं न रेंगी, हर एक ने सुनी अनसुनी कर दी। किसी ने तो सोचा हमारा शहर हर एक को अजीज है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया तो अंदेशा है लोगों को नागवार होगा, फिर यहाँ आना दिल पर बार होगा। कबीला सकीफ के लिए यही रुकावट थी। ताइफ की आबो हवा बहुत खुशगवार थी, हर एक को पसंद आती। गर्मियां आती तो वहाँ रईसों की चहल पहल होती। सकीफ को खतरा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया तो वो ताइफ का तवाफ करना छोड़ देंगे। अरब का मशहूर बुत लात भी वहीं था, जो आम और खास की ज़ियारतगाह था। ईमान लाने से उसकी रौनक खत्म हो जाने का खतरा था। कुछ कबीले ऐसे भी थे जिन्हें सरदारी की हवस थी। कबीला बनु आमिर का यही हाल था। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा, हम ईमान तो ले आएंगे लेकिन आपके बाद हुकूमत हम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूमत और सरदारी अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है उसे नवाजता है। उन्होंने सुना तो ये कहते हुए गर्दनें हिला दी, हम तो आपके लिए गर्दनें कटवाएं, फिर गलबा नसीब हो जाए तो सरदारी दूसरे लोग करें, जाइए आपकी हमें जरूरत नहीं। कंदा, कलब, बनु हनीफा, बनु मुजर अरब के मशहूर कबीले थे। ये और न जाने कितने कबीले थे, सब ने कानों पर हाथ धर लिए। किसी ने भी आप अलैहिस्सलाम की मदद न की। वो कहते, आदमी का हाल घर वाले ही बेहतर जानते हैं, अगर उसमें खैर होता तो घर वाले क्यों न साथ देते। गरज हर जगह नाकामी हुई। किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत न की। बहुतों ने तो बड़ी बेदर्दी का सलूक किया, सख्ती से इनकार कर दिया। अगर कुछ कबीले इंसानियत से पेश भी आते और शराफत से बात सुनने के लिए तैयार होते तो अबू लहब आ पहुंचता, उनको आपके खिलाफ भड़काता और कहता, ये चाहता है तुम लात और उज्जा को छोड़ दो और इसकी खराफात में फंस जाओ, तो देखो इसकी बातें न मानना, इसके फरेब में कभी ना आना। अबू लहब की बातें सुनकर वो लोग बिदक जाते, फिर उनके भी तेवर बिगड़ जाते। औस और खजरज मदीने के दो मशहूर कबीले थे, उनमें एक जमाने से अनबन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए तो ये अनबन पूरे शबाब पर थी और पहले से ज्यादा ऊंचे पैमाने पर। आपस में तो ये अनबन थी, पड़ोसी यहूदियों से भी हो गई, इसीलिए उनमें हमेशा जंग रहती, कभी औस और खजरज और यहूद में। इस तरह मदीने में किसी न किसी रंग में जंग जारी रहती। एक की आग बुझने न पाती कि दूसरी जंग भड़क उठती। यहूदी बड़े मक्कार और चालों के बादशाह थे। सोचा औस और खजरज दोनों एक होकर लड़ते हैं, इसमें तो हमारे लिए खतरा है। सारे आदमी कटे जा रहे हैं, सारी दौलत डूबती जा रही है। मदीने के हम सरदार थे, अब ये सरदारी भी दम तोड़ रही है। कोई ऐसी चाल चलनी चाहिए कि दोनों के दिल फट जाएं, वो एक दूसरे से कट जाएं और जुड़ने का नाम न लें। वो आपस ही में लड़ते रहें, हमारी तरफ मुड़ कर न देखें। चुनाचे यही हुआ, दोनों एक दूसरे के नाम से जलने लगे। हर एक का अरमान था दूसरे को मिटाकर छोड़े। जरा जरा सी बात पर जंग के शोले भड़क उठते और फिर बुझते बुझते माहो साल बीत जाते। नतीजा क्या हुआ? रिश्ता उखुव्वत पारा पारा हो गया और फिर उनके आजाद थक कर चूर हो गए। बेपनाह दौलत तबाह हो गई और न जाने कितने इंसान जाया हो गए। फिर भी वो न माने और खून की होली खेलते रहे। उस वक्त यहूदियों की पॉलिसी भी कितनी गहरी थी।
वो हारे हुए की मुखालिफत करते, जीते हुए की पीठ ठोंकते ताकि एक के मुकाबले में दूसरा बिल्कुल ही कमजोर हो जाए। इस तरह उनकी कुव्वत और शौकत बढ़े। साथ ही वो दोनों पर अपनी सरदारी कायम रखने की कोशिश करते। खुद तो ऊंचे ऊंचे काम चुन लेते, तिजारती मंडियों पर कब्जा कर लेते और उनके लिए छोटे छोटे काम छोड़ देते। ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, किताब व शरीयत के हामिल थे और औस व खजरज बुत परस्त थे। उनको इस पर भी बड़ा नाज था। ये अपनी बड़ाई जताने के लिए उन्हें आर दिलाते, उनके सामने अंजाम की निहायत भयानक तस्वीर खींचते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अपनी किताबों की पेशन गोइयां सुनाते। कहते एक नबी आने वाला है, उसका वक्त बस करीब है, वो आ जाए तब देखना किस तरह तुम्हारे छक्के जुड़ाते हैं। हम उसके साथ हो जाएंगे, फिर आदे इरम की याद ताजा करेंगे। अरसे तक मदीना वालों का यही हाल रहा। उस वक्त भी यही हालात थे जब कबीला औस के वफ्द कुरैश को अपना हलीफ बनाने आया था। उसी मौके पर आप अलैहिस्सलाम की उससे मुलाकात हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी। अयास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन माज ने उसी दम लब्बैक कहा था। बकिया लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस वक्त वो जंग की धुन में थे और उसी के नशे में चूर। कबीला औस ने उस वक्त तो आपकी बातों में कोई दिलचस्पी न ली, बड़े रूखेपन से इनकार कर दिया। लेकिन घरों को लौटे तो दिल पर काफी असर था, जहन में बार बार वो बातें गूंज रही थी। फिर औस खजरज में जंग के तेज और हौलनाक शोले भड़क उठे। करीब था पूरी आबादी उनकी लपेट में आ जाती और सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन खुदा का करना ऐसा कि यहूदी कबीला औस से मिल गया। इस तरह उनकी फतह हो गई और जंग का फैसला हो गया। अब दोनों ने अपनी अपनी हालत पर नजर डाली, जंग के असरात का जायजा लिया। अंजाम सामने आया तो दोनों के औसान जाते रहे। ये देखकर उनके होश उड़ गए कि इसमें बेशुमार जानें हलाक हो गई, बेपनाह माल तबाह हो गया, सारी कुव्वत बर्बाद हो गई और जाहो शौकत का महल जमीन पर आ रहा। उन्होंने महसूस किया अब तो हम यहूदियों के गुलाम हैं, जो हारे हैं वो भी, जो जीते हैं वो भी। यही वो हौलनाक जंगे हैं जो जंगे बुआस के नाम से मशहूर हैं, जिनकी तबाहियों और बर्बादियों के किस्से अब तक दुनिया को याद हैं। जंग का खौफनाक अंजाम देखकर दोनों कबीले लरज़ गए। दोनों ने मिलकर अज़्म किया अब हम आपस में मेल मोहब्बत से रहेंगे, वक्त पर एक दूसरे के दस्तबाजू बनेंगे। उनमें सुलह हो गई। दोनों ने तय किया औस खजरज का सरदार एक ही हो। इसके लिए उनकी नजरें अब्दुल्लाह बिन उबई पर पड़ी। ये कबीला खजरज का आदमी था, दानाई और होशियारी में मशहूर था, हुस्न तदबीर में उसका चर्चा था, असर और रसूख में भी सबसे आगे था। चुनाचे सब ने तायद की और बात तय हो गई। जश्न ताज पोशी के लिए तारीख भी पड़ गई। लेकिन अचानक हालात का रुख बदला। ये काम होते होते रह गया। गैब से इज्जत और सरबुलंदी के लिए कुछ और ही सामान हो रहा था, जो उनके लिए ज्यादा बेहतर था और इस तदबीर से ज्यादा कारगर भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।